Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again in front of you to teach the rest of the chapter 21, that is our community life, unity in diversity. Here we have discussed about the community as an interdependence, community, the family, and we have also discussed about sanskar, school, the community, neighborhood, the community, economic interdependence and dependent on community. This all we have discussed, and we have also discussed how communities cultural development also. Till here we have discussed. Now children, we will move on. Today we will discuss diversity in India. What does this diversity means? Diversity means varied forms of India. How there are varied forms of India? Because in India there are a lot of culture, custom, tradition. So we can say it's a diversified India. So let's begin. India is a large country extending from Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal to Ankleshwar. Variety of climatic conditions, soil, irrigation method, culture and religious background symbolize diversity in various fields. If you try to observe the food habits of people, the clothes they wear and work they do in different parts of the country, you will clearly notice the variety and diversity of different religion. Even within a region, the lifestyle is very much different in rural and urban areas. It is because the lifestyle of the people is directly related to their physical surrounding. See children, India is a land of big country, isn't it? If you will observe right from Kanyakumari, okay, to here Arunachal Pradesh to Ankleshwar, it's a very big country. Kanyakumari, Kashmir to Kanyakumari, and from Ankleshwar to Arunachal Pradesh, isn't it? It's a very big country, and there is a type of variety of climatic conditions, soil, irrigation, everything is different. Somewhere the soil is black, somewhere the soil is loamy, somewhere the soil is sandy. Same also the condition, somewhere so climatic condition, somewhere it is hot, somewhere it is very cold. So it is a diversity in every field, various field. Okay, there are so many diversities. हर अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रांत में अलग अलग विविधताएं हैं. इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, अगर हम फूड हैबिट्स को ध्यान दें तो फूड हैबिट्स भी हमारे डिफरेंट हैं. अगर हम बोली को ध्यान दें तो बोली डिफरेंट है. लैंग्वेज को ध्यान दें तो लैंग्वेज डिफरेंट है. चाहे शहर हो, गांव हो, हर जगह हमको कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल में डिफरेंस मिलेगा. चाहे रूरल मीन्स गांव एंड अर्बन मीन्स शहर. यहाँ पे भी हमको फिज़िकल एंड कंडीशन, जहाँ जैसा माहौल, मैंने आपको बताया था क्लास 5 में कि बेटा जैसा क्लाइमेट रहता है वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही कपड़े और वैसे ही खाना और पहनना होता है. इसी तरह अलग अलग प्रांत में अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं और इन्फ्लुएंस बाय वेरियस हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. चलिए कुछ फैक्टर्स होते हैं हिस्टोरिकल, है ना, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जोग्राफिकल मतलब वहाँ की बनावट, कुछ सोशल है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिससे हमारे इंडिया में अलग अलग भांति भांति के लोग और भांति भांति के प्रकार के लोग हैं. इस अनेकता में भी एकता है. कैसे? द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड. इट इज़ द आउटकम ऑफ एन एप्रिशिएशन मीन्स बेटा तारीफ़. हमारे यहाँ इंडिया की एक जो तारीफ़ वाली बात ये है कि हम सब टॉलरेंस है. टॉलरेंस मतलब हम सब धर्म के लोगों को मानते हैं. इंडिया में वसुधैव कुटुंबकम मतलब धरती के सारे लोग को हम एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं और उनके साथ कभी भेदभाव और गलत हरकत नहीं करते. Therefore, different beliefs and customs of India. In fact, Indians' unity in its diversity is unique. हमारी इंडिया की ख़ास बात है इसकी यूनिक मतलब ख़ास बात ये है कि इतने प्रांति भांति के लोग हैं फिर भी हम सब एक हैं. एक गाना, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं. क्यों एक हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग होने के बावजूद भी देखिए
हमारे यहाँ हर प्रकार के फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो हर प्रांत में अलग अलग फेस्टिवल है। पंजाब में बैसाखी बोलते हैं, तो ओनम में केरल में ओनम बोलते हैं, पोंगल तमिलनाडु में बोलते हैं, गरबा होता है, गरबा डांस होता है, तो कहीं बिहू, कहीं गुजराती का डांस गरबा, तो कहीं बिहू का आसाम, घूमर राजस्थान का। हर इंडिया में अलग अलग चीज़ है। द रिचनेस ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन लीज इन द बिलीव दैट द कल्चर आर इक्वल। मतलब हम सब अलग होने के बावजूद भी हम सब एक है, इक्वालिटी है। हमारी इक्वालिटी इसी बात का है कि हम सब अपने कल्चर, डाइवर्सिफाइड कल्चर में भी इंडिया को एक करके रखे हैं। हम झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हम एक इंटीग्रेटेड इंडिया है, मतलब एक राष्ट्र, पूरी एकता है। ओके, अब देखिए द इनइक्वालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टू सेफगार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ नियम कानून बनाए हैं जिसके तहत हम सब इंडिया को जोड़ के रखता है। कैसे? अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी both in rural and urban areas have led to more discrimination in society। हमारे इंडिया में गांव और शहर के बीच में तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लेकिन उसके अलावा देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट बहुत सारे रीज़न हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट द पुअर एंड द downtrodden are being exploited and ill treated by the rich। हमारे इंडिया में हम कहीं पे भी देख लो, रिच एंड पुअर के बीच में बहुत गैप है। रिच हमेशा पुअर को दबा के रखने की कोशिश करता है, और पुअर बेचारा हमेशा अपनी मजबूरी से त्रस्त होके मजबूर होके त्रस्त रहता है। उसके साथ उसका बुरा व्यवहार करते हैं, रिच लोग बुरा व्यवहार करते हैं, वो सहन करता रहता है, और रिच अपना जुल्म और सितम करते रहते हैं। एंड उसी तरह से यहाँ पे द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन टू अनदर। अच्छा, हमारे इंडिया में कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो सिक्स लोग ऐसे हैं, वो मुस्लिम लोग ऐसे हैं, वो हिंदू लोग ऐसे हैं, उनके यहाँ ऐसा चलता है, उनके यहाँ ऐसा चलता है। हम लोग दुनिया भर की इस टाइप की बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि औरतों को लेकर भी बहुत बातें। औरतों का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब औरतों के साथ बुरा व्यवहार तो सभी धर्मों के लोग में होता है। ओके, डू यू नो, मैं नहीं कर रही हूँ बेटा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। मेनी सोशल रिफॉर्म्स लाइक राजा राम मोहन राय, ये देखिए, ये राजा राम मोहन राय है, ये ईश्वरचंद विद्यासागर है, ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और ये बाल गंगाधर। इन लोगों ने ना समाज, ये लोगों ने अंग्रेज़ों के जब जुल्म सितम थे तब उनको समझ में आया कि समाज को पहले उत्थान करो, सम्मान का भला करो। तो उन्होंने समाज में बहुत सारी चीज़ें जो बुराइयां थी उसको मिटाने के लिए, एकता लाने के लिए काम किया। देखो, टू गेट रिड ऑफ द इनइक्वालिटीज़। क्या बुराइयां थी? जैसे कि सोशल इवल्स, बुराइयां मतलब सोशल इवल्स क्या थी? अनटचबिलिटी, छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इंडिया में। जेंडर बायस, लड़का लड़की में भेदभाव बहुत था। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बहुत ही, लोगों को बेरोजगारी थी। अनपढ़ गंवार थे, जो कोई बोल दिया वैसे ही मान लिए। ये सारी प्रॉब्लम हमारे इंडिया को जो है उस वक्त इल स्प्रेड थी। इल स्प्रेड मतलब पूरे इंडिया में फैल रखी थी। तब इन लोगों ने, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने क्या किया? हमारे लोगों को एकजुट किया और इन बुराइयों को समझाया और इनमें हमारी बुराइयों को मिटाने की कोशिश की। जैसे हमारे दयानंद सरस्वती, उन्होंने पढ़ाई को इतना बढ़ावा दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो अपने आप सब बुराइयां मिट जाएगी। आदमी का जो मानसिक हिसाब है या मानसिक संतुलन वो वाइड स्प्रेड होता है, ज़्यादा अच्छे से सोच पाता है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was being framed, our national leaders kept this in mind. Therefore, they included many such provisions in the constitution which aim at bringing social in economic way। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इन बातों का पहले से ही देख लिए थे कि इंडिया में ये सब प्रॉब्लम्स हैं या ये सब कमियां हैं। तो जब भी कोई फ्रेमवर्क बनता है, जब भी कोई रूल बनता है, तो इकोनॉमिक एंड जेंडर इक्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये जो इकोनॉमिक मतलब कि पैसे वैसे का भी हिसाब रखा जाता है। पॉलिटिकल यानी कि देश में जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो राजनीतिक या पॉलिटिकल फील्ड है,
उस पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद द फंडामेंटल राइट्स, द राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये जो हमको देश ने ये कुछ राइट्स दिए हैं कि राइट फंडामेंटल राइट है, मतलब हमारे संवैधानिक जो आज़ादी है, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हमको कोई हमारे पर अत्याचार करे तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली द डायरेक्टिव principles of state policy are guidelines of the government to different levels to plan and act upon it। हमारे लिए हमको कैसे काम करना है, हमारे लिए रूल्स बने हैं। स्टेट को, गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, उसके लिए भी रूल्स बनी हैं। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, हमारे पास स्कूल में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको यूनिफॉर्म के साथ साथ क्या देते हैं, एक डायरी देते हैं, स्कूल डायरी मिलती है ना बेटा। उस स्कूल डायरी को आप क्या करते हो, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कि स्कूल में आपको कैसे बिहेव करना है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। वैसे ही एक गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी और हमको कैसे बिहेव करना है, ये सारे डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स हैं, वो हमको फॉलो करना है और हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमको फॉलो करना है। इसके बारे में हमको क्लास 7 में ज़्यादा पढ़ने को मिला है। ये बेटा दयानंद सरस्वती के ऊपर है। मैं आपको अभी ये भेज दूँगी PDF, इसको आप पढ़ लें और इसको आप समझ लें, और कोई डाउट हो तो पूछें, क्योंकि आप दयानंद सरस्वती के बारे में ऑलरेडी DS चैप्टर में पढ़ चुके होते हो। उसके बाद आता है अवर रूरल कम्युनिटी। बेटा हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, हमारे कम से कम 2/3 हमारे इंडिया का पॉपुलेशन गाँव में बसता है, और गाँव को हम इंडिया से दूर नहीं मान सकते। गांव बहुत बड़े कम्युनिटी है और गांव में पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही चलता है, वहाँ पे मेन काम बेटा गांव में एग्रीकल्चर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम ए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत तरक्की की एग्रीकल्चर ने, और तरक्की में क्या हुआ है, अभी हमारी तरक्की करने से इंडस्ट्री आई, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हुआ, बहुत सारी रिसोर्सेस उत्पादन हुए, जिससे अभी गाँव की कायाकल्प हो गई। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, लाइटें आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, और आजकल हम एक ही फसल एक ही शहर में एक ही लैंड में 4-5 फसल साल भर में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलने लग गया है गांव में, है ना। तो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द रूरल लाइफ। गांव में इलेक्ट्रिसिटी आने से बहुत तरक्की हुई। टेलीविज़न आया, रेडियो आया, टेलीफोन आया, इससे लोगों को दुनिया जहाँ से जुड़ने का मौका मिला और दुनिया को समझने का मौका मिला, और बहुत सी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता अब गाँव वालों को, और हम इनके गाँव वालों को समझने का मौका मिला। द टिपिकल होम अप्लाइंसेस आर कॉमन। आजकल ये सब गाँव में मिलता है। न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, आजकल एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं गांव में। फर्टिलाइज़र आपको पता ही है क्या आता है। एंड आजकल गांव को अभी देखिए सरकार कितनी बैंक से लोन देती है, फाइनेंस देती है, फाइनेंस मतलब लोन देती है, ताकि उनका बीज और फर्टिलाइज़र्स खरीद सकें और अच्छी फसल दे सकें। दीज हैव हेल्प द फार्मर्स टू अशर ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं, जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से आज हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, भरपूर भंडार भरे पड़े हैं। हमारे स्कूल के पीछे बेटा देखिए बहुत बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं अनाज के भंडार हैं, वो क्या है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है ना। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन से आज क्या, कोरोना के टाइम पे जब लोग काम नहीं कर रहे हैं खेतों में, तो सबको अनाज 3-3 महीने का राशन सरकार बांट पा रही है। इसके अलावा डैम्स हैं और ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये भी खोले गए हैं रूरल एरियाज़ में। हाउएवर द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन हैज़ डाइल्यूटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। हाँ, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन एक बहुत बुरी तरह से बढ़ते जा रहा है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी हम उतनी तरक्की नहीं कर पाएँ जितनी हमको करनी चाहिए। कंटिन्यूस कोशिश की जा रही, कंटिन्यूस एफ़र्ट किया जा रहा है। एफ़र्ट मतलब कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे देश में तरक्की गाँवों में भी आए
और प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस। जो लोग गाँव वालों में सबसे बड़ी इनइक्वालिटी मतलब और अमीरी और गरीबी के बीच में भेदभाव, इलिटरेसी, अनपढ़ गंवारों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट आजकल गाँव पे बहुत ध्यान दे रही है और बहुत पैसा खर्च कर रही है। इग्नोरेंस मतलब गाँव में आज कोई बात की इग्नोरेंस नहीं है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और रूरल इंडेप्टनेस, गांव वालों का जो कर्ज है वो बहुत हद तक सरकार माफ़ कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया है। ये सारी बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, वह सब समस्याएं अब धीरे धीरे पहले जो थी इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, वो धीरे धीरे अब कम होती गई हैं। इन आवर विलेज प्रॉपर प्रॉस्परस इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली सोशली स्ट्रॉन्ग। आज हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, साथ साथ हमारे गांव भी तरक्की कर रहे हैं। मंदिर रसौद ले लीजिए बेटा, जब मंदिर रसौद में जब मैं फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही थी आज से 10-12 साल पहले, तो बस कुछ नहीं मिलता था। मेरे को मैप भी एक ठो बोलती थी बच्चों को, बेटा मैप लेके आओ, तो बच्चे बोलते थे मैम रायपुर जाके लाना पड़ेगा। लेकिन अब मैप के लिए उनको कुछ भी बोलो तो आजकल वो लोग आसपास की दुकानों से, मंदिर हसौद की आसपास की दुकानों में मिल जाता है और कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो आप सोच लीजिए मंदिर रसौद में भी सारी चीज़ें मिलने लग गई हैं। तो इस तरह से अब गांव में तरक्की काफ़ी हो गई है। और गांव अब देखिए मंदिर रसौद आज से 10 साल बाद मैं बोलती हूँ वो रायपुर से इतना जुड़ जाएगा कि रायपुर और मंदिर रसौद एक जैसा दिखने लग जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मंदिर रसौद गाँव में आए हैं, वो एक जैसा दिखने लग जाएगा। लाइफ इन टाउन एंड सिटीज़ आर कंपैरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। ऐसा बोला जाता है कि शहर में थोड़ी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होती है, स्मूथ होती है, क्योंकि बेटा गांव में बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो सुबह से उठते हैं और हल चलाते हैं और साइकिल में काम करते हैं, वह बिजली पानी की दिक्कत है। लेकिन गांव में पानी भी लेने काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। शहरों में क्या होता है, नल खोलो पानी है, गाड़ी उठाओ चल दो, थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ होती है, ऐसा सही माना जाता है। मैं तो मानती हूँ कि गाँव की अपेक्षा शहरों में लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। बहुत सारे शहरों में आजकल काम मिलने लगे, बहुत सारे गांव वाले आजकल काम के लिए, तलाश के लिए शहर आने लगे। ड्रिंकिंग वाटर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, कॉलेज, स्कूल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स, फूड, ये सब आराम से मिल जाता है गांव में, आराम से। अबंडेंस मतलब इनकी दिक्कत नहीं है। आप गांव में जाइए, बहुत सारी चीज़ें आराम से नहीं मिलती। पहली बात तो एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे हर चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन शहरों में ज़रूरत से ज़्यादा सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि शहर के लोग खर्चा भी उस हिसाब से करते हैं, गांव वाले नहीं कर पाते। दिस हैज़ अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू द काम एंड सेटल इन सिटीज़। अब क्या हो रहा है, गांव में काम नहीं है, गांव में इतना तरक्की नहीं है, तो लोग आजकल शहरों की तरफ जा रहे हैं। लोग शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा माइग्रेशन चैप्टर में क्लास 5 में पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग गांव छोड़ कर शहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे काम मिल जाता है, कुछ ना कुछ करने मिल जाता है और थोड़ी सुविधाजनक भी होता है शहर। बट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज, टाउन्स एंड सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड एंड स्कैर्स इन बेसिक नीड्स। हाँ, बहुत सारे गांव के लोग जब शहर आकर बसने लग गए हैं, तो शहरों में घर महंगे हो रहे हैं, सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड हो रही है, बसों में बहुत भीड़ है, ट्रेनों में भीड़ है, स्टेशनों में भीड़ है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सब शहर की तरफ जा रहे हैं और शहरों में सब आके बस रहे हैं। तो शहरों में अब थोड़ी पानी की दिक्कत और सब, क्योंकि पानी की दिक्कत, ट्रैफिक जैम्स, ऐसी समस्याएं आने लग गई हैं। In spite of tremendous development in the field of transport, the roads are overcrowded. अभी मैंने आपको बताया कि रोड्स में इतना रोड बन गया है, इतनी चौड़ी चौड़ी रोड बन गई हैं, डबल लेन, सिंगल लेन, सारे रोड्स बनने के बावजूद भी हमारे ट्रैफिक जैम होते हैं। सबसे बड़े शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कचरा, डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट, लैक ऑफ सैनिटेशन, सफाई नहीं होती है। स्वच्छता बहुत बड़ी समस्या है। गांव फिर भी स्वच्छ मिलेगा। ड्रेनेज, नालियाँ जाम होती हैं, साफ़ पानी नहीं मिलता,
ये सारी समस्याएं आजकल धीरे धीरे बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं, ओवर पॉपुलेटेड होती जा रही हैं। शहरों में लोग आके ज़्यादा बसने लग गए हैं, इसलिए ओवर पॉपुलेशन। अभी आप देखिए कोरोना के साथ श्रमिकों, लेबर, कई तादाद में लाखों लेबर गांव से शहर जाके बस गए थे। अब वो वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में अब पानी की प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पेट भर खाने नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? अपने गांव चले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ आर इंक्रीजिंग विच कॉज अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन। इससे क्या हो रहा है? लोगों के बीच में पैसे की प्रॉब्लम आती है, सोशल इनइक्वालिटी आ रही है, भेदभाव अभी भी रिच एंड पुअर के बीच में है, और लोगों के बीच में अभी भी मतलब टेंशन्स के माहौल है। हाउएवर कुछ लोगों ने इसको चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं, तो और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, एवरी कम्युनिटी नीड्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, इसीलिए हमको एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इतने सारे ज़्यादा तादाद में लोग हो जाते हैं तो उनको संभालने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ने पर पंचायत गवर्नमेंट गांव में अप्लाई किया गया है, और गांव में आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंट किया गया है। इन ग्राम पंचायत को पूरे गांव की देखरेख करता है, संभाल करता है। वैसे ही शहरों में नगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ पूरे शहर को संभालती है ना। और टू सब्सिक्वेंट चैप्टर, हम आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें गांव के में क्या पंचायत काम करती है, शहरों में क्या पंचायत काम करती है, वो मैं आपको समझा दूँगी। अब देखिए, ये कुछ डू यू नोज़ हैं जो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है वो आप पूछेंगे, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी समझाने के लिए। यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया, हरित क्रांति, इसके बारे में एक बार और बता दूँ बेटा। 1960s में क्या हुआ था? हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में खाने की कमी थी। क्यों? क्योंकि किसानों के पास ज़मीन नहीं थी। बड़े बड़े ज़मींदारों के पास सारी ज़मीन गिरवी थी, और किसान गरीब थे। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनसे एक्स्ट्रा ज़मीन लेकर उन किसानों को दे दिया गया जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं थी। और उस खेत जब किसानों को दिया गया तो उनको बीज दिए, फर्टिलाइज़र दिए सरकार ने, और बोला कि तुम लोग खेती करो। इसी को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। जब वो खेती करे तो उसके बाद अच्छी फसल होने लगी। एक ही साल में तीन बार फसल होने लगे, और गेहूँ और ये हाइब्रिड सीड्स डालने लग गए, और फर्टिलाइज़र्स डालने लगे, जिससे पैदावार इतनी ज़्यादा हो रही है कि आज हम उन सबको स्टोर कर के रखे हैं। हाँ, ऐसे समय पे काम आता है, जैसे अभी कोरोना के लिए सरकार ने 3 महीने का राशन फ्री में सबको बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि आज विपत्ति समय, आज एक प्रॉब्लम आई है इंडिया पे, तो ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे सरकार हेल्प करती है। तो यही स्वामीनाथन का जो MS स्वामीनाथन का जो प्रोजेक्ट था, जो यहाँ पे है, उन्होंने समझाया था ये ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, और उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे ये जो एक और है फिश रिवोल्यूशन पे भी ध्यान दिया गया था बेटा। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब मैंने आपको बताया था कि खेतीबाड़ी से रिलेटेड होता है, ग्रीनरी के लिए, यानी ग्रीन यानी कि खेतों में फसल बढ़ाने के लिए। वाइट रिवोल्यूशन मैंने आपको चैप्टर जो हमारा VS कुरियन वाला जो अमूल चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, अमूल एंड इट्स प्रोडक्ट के बारे में जो क्लास 5 में हमने पढ़ा था, वो है वाइट रिवोल्यूशन। और ब्लू रिवोल्यूशन बेटा फिश को भी बहुत बढ़ावा दे रही है सरकार। येलो रिवोल्यूशन यानी कि बीज तेल वाले बीज, तिलहन वाले बीजों को बोलते हैं, इन पे भी सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अभी मैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ये सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और वीडियोस भेज दूँगी, आप देख लेना, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।